students, good morning. Welcome here. Welcome our YouTube channel Ranjit Modern School. We have completed our previous video in this worksheet number 1. So today I will start lesson number 6. A home for the frogs. क्या है हमारा टाइटल? A home for the frogs. So take your term book and open the page number 41. So उसमें हमने हमारा जो टाइटल है वो किससे रिलेटेड है? फ्रॉग्स से. फ्रॉग्स यानी कि मेढक. क्या होता है? मेढक. यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अ होम फॉर द मेढक. यानी कि मेढक के होम के बारे में, होम के रिलेटेड यहाँ पर हमें इस लेसन में हमारी जो टर्म बुक है उसमें हमें लेसन दिया है. सो उसकी अगली वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको हार्ड वर्क जो है वो मैंने आपको लिखवा दिए थे. सो आज मैं ये जो हमारा जो लेसन है उसका मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं करती हूँ. सो फर्स्ट आई विल रीड. सो कंसंट्रेशन हियर. How does a frog cry? When do you see frogs? Do you know that color frogs are? क्या यहाँ पर लिखा है? How does a frog cry? When do you see frogs? Do you know what color frogs are? क्या यहाँ पर पूछ रहा है कि How does you frog cry? क्या आपने cry को, आपने frog को रड़ते हुए देखा है कभी? फ्रॉग जो है वो कैसे रड़ता है? When do you see frog? क्या आपने कभी भी मेढक जो है यानी कि फ्रॉग जो है उसको देखा है? Do you know what color frogs are? क्या आप लोग जानते हैं कि फ्रॉग जो है, जो मेढक है उसका कलर है वो कैसा होता है? तो इस तरह हमें यहाँ पर जो येलो वाली जो क्लू दी गई है, जो बॉक्स दिया गया है उसमें जो लिखा हुआ है उसमें क्या बताया जा रहा है कि हाउ डज अ फ्रॉग क्राई, यानी कि जो फ्रॉग है वो कैसे रड़ता है और आपने उसे कब देखा है? व्हेन यानी कि कब. फ्रॉग जो है उसको कब देखा है? सी इट मीन्स होता है देखना. सो डू यू नो व्हाट कलर फ्रॉग्स आर? यानी कि आप लोग जानते हैं जो मेढक है उसका कलर जो है वो कैसा होता है. सो अब हमारा जो लेसन है वो मैं फर्स्ट रीड करती हूँ. सो आप सब लोग अपनी जो टर्म बुक है उसमें ध्यान दीजिए ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर जो लिखा है उसका सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं और हम कैसे रीड करना सीखते हैं. सो मैं यहाँ पर रीड करती हूँ. कंसंट्रेशन हियर. Once upon a time, two frogs lived in a pond. Once upon a time, two frogs lived in a pond. They were very happy together. They were very happy together. They woke up each morning and sat on the leaves. They woke up each morning and sat on the leaves. फिर से मैं फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो मैं रिपीट करती हूँ. Once upon a time, two frogs lived in a pond. They were very happy together. They woke up each morning and sat on the leaves. फिर से मैं वन टाइम रिपीट करती हूँ. Once upon a time, two frogs lived in a pond. They were very happy together. They woke up each morning and sat on the leaves. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है वो मैंने रीड किया है. सो आई होप कि आपको एक कैसे हम रीड करते हैं वो आपको पता चल गया होगा. देन नेक्स्ट जो हमारे पास एक ब्लू लाइन वाला जो है वो मैं रीड करती हूँ. सो आप सब लोग अपनी टर्म बुक में कंसंट्रेशन कीजिए. इट इज सो गुड टू एंजॉय द वार्म सनशाइन. इट इज so good to enjoy the warm sunshine.
Yes, it is, but we should jump back into the pond when the sun rises higher since we have to be back always. Yes, it is, but we should jump back into the pond when the sun rises higher since we have to be back always. Then next page 42 number पर. As summer drew closer, it became very warm. By noon, the sun was very hot and frogs could not come out of the pond. क्या है हमारा पैराग्राफ? As summer drew closer, it became very warm. As summer drew closer, it became very warm. By noon, the sun was very hot and the frogs could not come out of the pond. Then next, oh no, the pond has dried up. Oh no, the pond has dried up. What should we do now? क्या यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन किया है? What should we do now? We have no home. We have no home. Come, let's look for a new home. Come, let's look for a new home. Then next, they come to a small pool under the shade of a big tree. They came to a small pool under the shade of a big tree. Oh, this is the right home. Oh, this is the right home. Oh, this is the right home. No, this pool is not deep. क्या यहाँ पर बता रहा है? No, this pool is not deep. It will dry up soon. Let's look for another place. It will dry up soon. Let's look for another place. Then next page is number 43. They hopped on till they came to a stream. They hopped on till they came to a stream. There were many children playing around the stream. There were many children playing around the stream. There were many children playing around the stream. Next, this can be our home now. This can be our home now. I love scare kite. I love to scare kites. No, kites can trouble us. No, kites can trouble us. They may throw stones at us. They may throw stones at us. Let's keep away from human beings. Let's keep away from human beings. Finally, they came to a deep well. Finally, they came to a deep well. They looked inside. It had a lot of water in it. The younger frogs were so overjoyed to see the water. The younger frogs were so overjoyed to see the water. Not so soon, my friends. Not so soon, my friends. We left the pond when it had dried up. We left the pond when it had dried up. So, first think how we shall come out of his well if it goes dry. So, first think how we shall come out of this well if it goes dry. This well looks like the right places for us to live. This well looks like the right place for us to live. It will be cool and safe. Let's jump into and leave her. Let's jump into it and leave here. So,
that two frogs are still looking around for a home. So the two frogs are still looking around for a home. Perhaps they are in your backyard or in your school garden. Perhaps they are in your backyard or in your school garden. Be sure to be kind to them when you meet them. Won't you see? Won't you? Be sure to be kind to them when you meet them. Won't you? So यहाँ पर इस तरह का लेसन जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस लेसन में बहुत सारी जो बातें हैं वो हमें सीखने के लिए मिलेगी, यानी कि मेढक के बारे में हमें यहाँ पर कुछ जानकारी जो है वो हमें इस लेसन में बताई गई है। सो 1 by 1 में जो लाइन है वो रीड करती हूँ और उसके बाद उसका जो ट्रांसलेट है वो भी मैं करती हूँ। सो आप लोग अपनी जो टर्म बुक है उसमें आप लोग ध्यान दीजिए। Once upon a time, two frogs lived in a pond. Once upon a time, two frogs lived in a pond. एक समय की यहाँ पर बात हो रही है कि एक समय जो दो फ्रॉग था वो कहाँ पर रहते थे? पॉन्ड यानी कि तालाब। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर जो फ्रॉग है, टू फ्रॉग्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पर हमारा जो इस लेसन है उसमें टू फ्रॉग्स की बात हो रही है। टू फ्रॉग्स जो है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। Once upon a time, two frogs lived in a pond. पॉन्ड यानी कि तालाब। जो ये फ्रॉग्स था, जो मेढक थे वो कहाँ पर रह रहे थे? Lived in pond. Lived in pond. जो यहाँ पर टू जो फ्रॉग है वो बहुत लंबे समय से एक जो तालाब था उसमें रह रहे थे। They were very happy together. वो दोनों साथ में कैसे थे? Very happy थे। कैसे थे? Very happy. So ये दोनों जो थे वो very happy थे। Very happy. Very happy. They woke up each morning and sat on the leaves. वो दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। फिर क्या होता है? वो दोनों जो है वो सुबह जो है इस मॉर्निंग यानी कि हर सुबह वो लोग उठकर सेट डाउन ऑन दी लीव्स यानी कि सेट डाउन यानी कि बैठ जाते हैं। लीव्स इट मीन्स होता है पत्ते पर, यानी कि वो दोनों सुबह उठकर कहाँ पर बैठ जाते हैं? पत्ते पर। कहाँ पर बैठ जाते हैं? लीव पर। सो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसका मैं फिर से ट्रांसलेट करती हूँ। Once upon a time, two frogs lived in a pond. यानी कि एक समय की यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ लंबे समय से जो दो फ्रॉग्स थे वो एक तालाब जो था उसमें रह रहे थे और वो जो दोनों थे वो साथ में रह रहे थे और वो दोनों बहुत ही हैप्पी थे। एंड दे वोक अप each morning and sat on the leaves. यानी कि वो दोनों जो है वो each morning यानी कि हर मॉर्निंग जो है वो सुबह उठकर जो पत्ता होता है उसके ऊपर बैठ जाते थे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसका इस तरह से हमारा ट्रांसलेट जो है वो हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास ब्लू लाइन वाला जो कोष्टक है वो मैं रीड करती हूँ। सो आप सब लोग अपनी टर्म बुक में concentration कीजिए। It is so good to enjoy the warm sunshine. It is so good to enjoy the warm
सनशाइन, वार्म इट मीन्स क्या होता है, वार्म यानी कि गर्मी, सनशाइन यानी कि चमकता हुआ सूरज। क्या होता है, सनशाइन यानी कि चमकता हुआ सूरज। सनशाइन इट मीन्स क्या होता है, चमकता हुआ सूरज। सो वार्म यानी कि होता है गर्मी। क्या होता है, गर्मी। सो क्या होता है, इट इज सो गुड टू एंजॉय द वार्म सनशाइन, यानी कि चमकता हुआ जो सूरज जो है, उसी गर्मी जो है उसको एंजॉय करने में बड़ा आनंद मिलता है। क्या मिलता है, जो सूरज की जो गर्मी है उसको एंजॉय करने में बहुत ही आनंद आता है। यस इट इज। सो दूसरे वाला जो मेटक है यानी कि ए वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 2 मेटक है, एक बड़ा वाला एंड एक छोटा वाला। सो जो छोटा वाला जो है वो क्या बोल रहा है, इट इज सो गुड टू एंजॉय द वार्म सनशाइन, यानी कि जो स्मॉल मेटक जो है वो क्या बोल रहा है कि हमें जो सूरज की जो गर्मी है उसका एंजॉय में बड़ा आनंद मिलता है। सो उसका जो आंसर है वो बड़ा वाला मेटक क्या देता है, यस इट इज, यानी कि तुम्हारी बात राइट है, तुम सच बोल रहे हो, यानी कि सूरज की जो गर्मी है उसको एंजॉय करने में बहुत सी जो आनंद जो है वो हमें मिलता है। So yes, it is. But we should jump back into the pond when the sun rises higher, since we have to be wet always. So यहाँ पर wet word जो है उसका मीनिंग क्या होता है, तो wet यानी कि गीला होना, यानी कि भीगना, जिसको हम गीला बोलते हैं, wet यानी कि गीला। तो बड़ा वाला जो मेटक है, जो बिग मेटक है, वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारी बात तो सही है लेकिन बट वी शुड जम्प बैक इनटू द पॉन्ड, यानी कि हम लोग जो तालाब है उसमें कब जंप लगाते हैं, सो व्हेन द सन राइजेस हायर, सिंस वी हैव टू बी बैक ऑलवेज, यानी कि जब सूरज उगता है, जब सूरज जो है वो उगता है तो हमें वापस तालाब के अंदर कूदना चाहिए, क्योंकि अगर हम तालाब के अंदर नहीं कूदते हैं तो हम लोग कैसे हो जाते हैं, वेट यानी कि गीला हो जाते हैं, भीग जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, जब सूरज उगता है तब हमें तालाब के अंदर जंप जो है वो लगाकर तालाब के अंदर चले जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो छोटा वाला मेटक जो है वो कह रहा है कि हमें सूरज की गर्मी जो है उसका आनंद लेने में बड़ा मजा आता है, लेकिन बड़ा वाला मेटक उसको क्या बोलता है कि तुम्हारी बात तो सही है लेकिन जब सूरज हायर यानी कि बहुत ही ऊंचा जब होने लगता है, यानी कि बहुत ही गर्मी बढ़ने लगती है, तब हमें तालाब के अंदर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम तालाब के अंदर नहीं गए तो हम लोग भीग जाएंगे। Then next page is 42. As summer drew closer, it became very warm, यानी कि जो समर है वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, करीब आ रहा है, तब तक जो वार्म है, जो गर्मी है वो बहुत सी बढ़ जाती है। By noon the sun was very hot, क्योंकि सन जो है वो कैसा है, वेरी हॉट यानी कि बहुत ही गर्म होता है। एंड द फ्रॉग्स कुड नॉट कम आउट ऑफ द फ्रॉग्स, यानी कि जब सन जो है वो बहुत सारा वार्म होने लगता है, बहुत सारा हॉट होने लगता है, तब जो मेढक होते हैं वो तालाब से बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि उसको उससे परेशानी होती है। Then next paragraph. Oh no, the pond has dried up. क्या है? Oh no, this pond has dried up. Dried up यानी कि सूख जाना। क्या होता है? Dried up यानी कि सूख जाना। क्या होता है? सूख जाना।
Oh no, the pond has dried up. Oh no, ये जो pond है, ये जो तालाब है, वो तो सूख गया है. What should we do now? अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कौन बोल रहा है? एक छोटा वाला मेंढक बोल रहा है, क्योंकि उसको परेशानी हो रही है. उसको तो टेंशन हो गया कि अरे अब हमारा जो तालाब है वो तो सूख गया है. अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना चाहिए? We have no home. We have no home, यानी कि हमारे पास अब तो कोई घर ही नहीं है, कोई होम ही नहीं है. अब हम क्या करेंगे? हमारा तालाब, हमारा पोंड तो अब सूख गया है. अब हम किधर जाएंगे? ऐसी उसको जो छोटे वाला मेंढक था उसको टेंशन हो रही थी. सो बिग जो मेंढक था उसने उसको क्या आंसर दिया? कम लेट्स लुक फॉर अ न्यू होम. क्या बोल रहा है बड़ा वाला मेंढक? कम लेट्स लुक फॉर अ न्यू होम. चलो अब हम हमारा न्यू जो होम है वो देखने के लिए जाते हैं. सो अब वो दोनों लोग क्या करते हैं? वो दोनों मेंढक क्या करते हैं? They came to a small pool under the shade of a big tree. वो दोनों कहाँ पर आ जाते हैं? जहाँ पर बिग ट्री का जो छाया है उसके नीचे जो तालाब है, जो छोटा वाला जो कुंड है, स्मॉल यानी कि छोटा वाला जो कुंड है, जो छोटा वाला तालाब है, उसके यहाँ उसमें वो लोग आ जाते हैं. कहाँ पर आ जाते हैं? तो जो एक बिग ट्री है उसकी जो छाया है उसके नीचे छोटा सा जो कुंड है वहां पर ये दोनों मेंढक जो है वो आ जाते हैं. Then फिर क्या होता है? ओ जो छोटा वाला मेंढक है वो क्या बोलता है? ओ दिस इज द राइट होम. ओ दिस इज द राइट होम, यानी कि ये हमारा राइट होम है, हमारा यही वाला घर जो है वो रियल में. नो दिस पूल इज नॉट डीप. तो बड़ा वाला मेंढक जो है वो उसको क्या आंसर देता है? नो दिस पूल इज नॉट डीप. ये पूल जो है वो डीप नहीं है, यानी कि गहरा नहीं है. इट विल ड्राई अप सून. लेट्स लुक फॉर अनदर प्लेस. इट विल ड्राई अप सून, यानी कि यह कुंड भी जो है वो जल्दी से सूख जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए. लेट्स लुक फॉर अनदर प्लेस, यानी कि चलो अब हम जो दूसरा प्लेस है वो देखने के लिए, लुक यानी कि देखने के लिए जाते हैं. क्योंकि ये जो कुंड है, जो ट्री के नीचे जो स्मॉल वाला जो पूल है वो कभी भी सूख सकता है, यानी कि हमें यहाँ पर भी परेशानी हो सकती है, इसीलिए हमें यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए. हम लोग दूसरी जो प्लेस है वहाँ पर हमारा न्यू होम जो है वो ढूंढने के लिए जाते हैं. फिर नेक्स्ट पेज नंबर 43. They hopped on till they come to a stream. और वो लोग कहाँ पर आ जाते हैं? स्ट्रीम, यानी कि जो एक नदी का प्रवाह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम. क्या बोलते हैं उसको हम? स्ट्रीम. तो वो दोनों जो है वो कहाँ पर आते हैं? They hopped until they come to a stream, यानी कि वो दोनों जो hopped on यानी कि कूद जाना, ऊपर कूद गया. तो जो स्ट्रीम जो था, जो नदी जो थी उसके ऊपर वो दोनों जो है वो कूद जाते हैं. There were many children playing around the stream. वहाँ पर क्या होता है? Many children, यानी कि कई सारे जो चिल्ड्रन जो थे वो वहाँ पर खेल रहे थे. Around the stream, यानी कि अराउंड यानी कि उसके आसपास. जो स्ट्रीम था, जो नदी थी, उसके आसपास कई सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो थे वो वहाँ पर खेल रहे थे. This can be our home now. This can be our home now. क्या अब यह हमारा घर होगा? I love to scare kites. I love to scare kites. लेकिन वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं? Scare यानी कि डरना. वो दोनों बच्चे से डर रहे हैं. No, no, kites can trouble us. No, no, kites can trouble us. बच्चों को क्या करना नहीं चाहिए? बच्चों को जो मेंढक है उसको कभी भी हैरान करना नहीं चाहिए. They may
बच्चे लोग क्या कर रहे होते हैं? जो बच्चे लोग है वो मेंढक को परेशान कर रहे हैं। कैसे परेशान कर रहे थे? पत्थर फेंक कर, थ्रो यानी कि फेंकना, स्टोन्स यानी कि पत्थर। तो पत्थर फेंक कर उसको हैरान कर रहे थे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेट्स कीप अवे फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। हम लोगों को इस तरह से कभी भी किसी को हैरान नहीं करना चाहिए। फाइनली दे केम टू अ डीप वेल। फाइनली दे केम टू अ डीप वेल। और क्या होता है? अंत में वो लोग कहाँ पर आ जाते हैं? जो गहरा जो कुआं था उसके यहाँ वो दोनों मेंढक जो है वो आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये जो दोनों मेंढक है वो वेल यानी कि कुआं के जो पास जो है प्लेस वहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं। They look inside, look यानी कि देखना। वो दोनों चारों ओर अपनी चारों ओर जो है वो देखते हैं। It had a lot of water in it. वहाँ पर क्या होता है? It had a lot of water यानी कि बहुत सारा जो वाटर है वो वहाँ पर उसको देखने के लिए मिलता है। The younger frog was so overjoyed to see the water. यानी कि जो यंगर जो बड़ा वाला जो मेंढक था वो बहुत ही खुश हो जाता है। किसको देखकर खुश हो जाता है? वाटर को देखकर खुश हो जाता है। ओवरजॉयड यानी कि बहुत सारा खुश हो जाता है। सी दी वाटर यानी कि वाटर को देखकर, पानी को देखकर जो बड़ा वाला जो यंगर मेंढक है वो बहुत सारा खुश हो जाता है। फिर क्या होता है? नॉट सो सून माय फ्रेंड। इतनी जल्दी नहीं मेरे यार। क्या बता रहा है यहाँ पर? नॉट सो सून माय फ्रेंड्स। नहीं इतनी जल्दी नहीं मेरे यार। वी लेफ्ट द पॉन्ड व्हेन इट हैड ड्राइड अप। जब वह सूख गया तो हमें ये भी छोड़ देना होगा। क्या बोल रहा है? एक छोटा वाला जो मेंढक है वो बोल रहा है, बड़ा वाला मेंढक है वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नॉट सून माय फ्रेंड्स। नहीं यार इतनी जल्दी नहीं। We left the pond when it had dried up. हम लोगों को ये जो तालाब है, ये जो कुआं है वो भी हम लोगों को कब छोड़ना होगा? जब वो ड्राइड अप यानी कि सूख गया होगा तब हमने उसको छोड़ना होगा। So first thing how we shall come out of this well if it goes right. So जल्दी से ऐसा सोचो। थिंक यानी कि सोचना कि यह कुआं यदि सूख गया तो हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे। आउट ऑफ द वेल यानी कि बाहर निकलना। वेल यानी कि कुएं में से। यदि ये जो कुआं है वो यदि सूख जाता है तो हम इस कुएं में से कैसे बाहर निकलते हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। सो यहाँ पर हमें खुश इतना सारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि जो कुआं सूख गया तो हम लोग कुएं में से कैसे बाहर निकलेंगे ये भी हमें सोचना चाहिए। This well looks like the right place for us to live. फिर एक छोटा वाला मेंढक जो है, जो स्मॉल जो फ्रॉग है वो क्या बोल रहा है कि this well looks like the right place for us to live. वो बोल रहा है कि हमारे लिए रहने के लिए ये जो वेल है, जो कुआं है वो अच्छा है, राइट है, यानी कि यही हमारे लिए हमारा रियल वाला होम है जहाँ पर हम लोग सेफ रह सकते हैं। इट विल बी कूल एंड सेफ। क्या बता रहे हैं? इट विल बी, यहाँ पर हम लोग कूल एंड सेफ रह सकते हैं। लेट्स जंप इनटू eat and live here. क्या बोल रहा है? चलो अब हम इसमें जंप लगाते हैं और वहां पर हम लोग रहते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? छोटा वाला मेंढक। Then last paragraph. So the two frogs are still looking around for a home. अंत में क्या होता है कि टू फ्रॉग जो है वो लुकिंग अराउंड फॉर अ होम, हमारे आसपास का जो होम है वहां पर हमें वो दिखाई देता है। परहैप्स दे आर इन योर बैकयार्ड और इन योर स्कूल गार्डन। परहैप्स यानी कि शायद, दे आर इन योर बैकयार्ड
दे आर इन योर बैकयार्ड और इन योर स्कूल गार्डन। लेकिन वो लोग हमारे पिछवाड़े का जो गार्डन है वहां पर वो लोग रह रहे हैं, ऐसा हमने शायद देखा है। बी श्योर टू बी काइंड टू देम व्हेन यू मीट देम, यानी कि हम लोग श्योर है, हम लोगों को काइंड यानी कि दया रखनी चाहिए किसके प्रति। सो बी श्योर टू बी काइंड टू देम व्हेन यू मीट देम। हम लोगों को जो ये जो मेढक है वो यदि हमें मिलता है तो हमें उसके प्रति दया भाव रखना चाहिए। सो वांट यू, आप लोग क्या इच्छते हैं, आप लोग ने क्या सोचा है। सो यहाँ पर हमारा जो लेसन नंबर 6 है उसका मैंने आपको 1 by 1 लाइन मुजब मैंने आपको ये जो ट्रांसलेट है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि इसका सही से मीनिंग क्या है, इस लेसन में हमें क्या बताया जा रहा है। सो हमारी अगली वीडियो आएगी, उसमें हम हमारा जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।